السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کا تکبر اسے کس انجام تک لے جا سکتا ہے؟ آج کی کہانی صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے چیتونی ہے جو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے ابراہیم کا وہ خوفناک انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے۔ دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سناتا ہوں یہ بہت سنگین ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہر انسان کو سننی چاہیے، ہر ماں کو سننی چاہیے، ہر باپ کو سننی چاہیے، اور خاص طور پر ہر جوان کو سننی چاہیے، کیونکہ یہ کہانی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ کہانی حقیقی ہے، یہ قرآن اور حدیث پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ کے عذاب کی سختی بہت بڑی ہے، لیکن آج کل ہم میں سے بہت سے لوگ اللہ کا عذاب بھول گئے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہم کو عذاب نہیں دے گا، وہ سوچتے ہیں کہ اللہ بہت نرم ہے، لیکن یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو کوئی انسان کر سکتا ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو ایک آدمی کی کہانی سناتا ہوں۔ اس آدمی کا نام تھا ابراہیم۔ یہ ابراہیم ایک بہت امیر آدمی تھا۔ اس کے پاس اتنا مال تھا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہت بڑے گھر، بہت بڑے کاروبار، سونے کی اشیاء، گاڑیاں، ہر وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف بالکل نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ ابراہیم نے اللہ پر ایمان نہیں رکھا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس نے اللہ کے کسی حکم کی بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس نے حرام کا مال کھایا، اس نے بدکاری کی، اس نے شراب پی، اس نے سود کا کاروبار کیا۔ سب کچھ وہ کرتا تھا جو اللہ سے ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، تو اللہ انہیں معاف نہیں کریں گے۔ ابراہیم کی یہی بیماری تھی۔ اس نے اپنے پیسے کو اپنا خدا بنایا، اس نے اپنے کاروبار کو اپنا خدا بنایا، اس نے اپنی عزت و شہرت کو اپنا خدا بنایا، اور یہ سب اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں، اللہ ہم سے صرف اپنی عبادت کرنے کو کہتے ہیں، صرف اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے پیسے کو پوجتے ہیں، اپنی عورتوں کو پوجتے ہیں، اپنے کاروبار کو پوجتے ہیں۔ یہی تو شرک ہے، یہی تو ابراہیم کا گناہ تھا۔ ایک دن ابراہیم کے پاس ایک فقیر آیا۔ یہ فقیر بہت ہی غریب آدمی تھا۔ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، پورا جسم دکھائی دے رہا تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، بیچارہ بہت بھوکا تھا، اس کے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ ابراہیم سے خیرات مانگنے آیا تھا۔ جیسے ہی ابراہیم نے اس فقیر کو دیکھا، اس کے منہ سے سخت سخت الفاظ نکل آئے۔ اس نے فقیر سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اس کی شکل دیکھ کر میرا کھانا بہت خراب ہو جاتا ہے کوئی شرم دین ایسے لباس میں میرے دروازے پر آنے کی۔ فقیر نے بہت ادب سے، بہت عاجزی سے اپنا سجدہ کیا۔ اس نے ابراہیم سے کہا کہ بھائی، میں بہت بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، براہ کرم اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانا دے دو، میں بہت جھوٹا ہوں۔ لیکن ابراہیم نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھائے اور پھر اس نے وہ پتھر اس فقیر کی طرف پھینک دیا۔ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میں تمہیں اور بھی برا کروں گا۔ فقیر رو رہا تھا، وہ پتھر لگنے سے تکلیف میں تھا، لیکن اس کا اصل درد تو یہ تھا کہ اس کو کوئی نہیں چاہتا، اس کو کوئی ضرورت نہیں دیتا۔ لیکن صرف یہی نہیں تھا، فقیر کے ساتھ جو ہوا، اللہ اس سے بہت ناخوش تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ غریبوں کو ستاتے ہیں، اللہ انہیں سب سے زیادہ سخت عذاب دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ غریب اور مسکین کو اذیت دیتے ہیں، ان پر اللہ کا غصہ بہت بڑا ہے۔ تو دوستو، یہی تھا ابراہیم کا گناہ۔ پیسے سے اترا، اللہ سے دور، غریبوں سے ستم، اور یہ سب اللہ کی نگاہوں میں دیکھے جا رہے تھے۔ اب سنو کیا ہوا اس کے بعد۔ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا۔ ایک رات کو ابراہیم کو بہت سخت بخار آیا۔
इतना सख्त कि उसका पूरा जिस्म तपने लगा। उसके सर में दर्द होने लगा, उसके पाँव में दर्द होने लगा, उसके पूरी जिस्म में ऐसा दर्द था कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकता था। इब्राहिम के खानदान वालों ने उसे एक डॉक्टर के पास ले जाया। डॉक्टर ने जांचा, उसने कहा, यह एक नया मर्ज है, मैंने उससे पहले कभी ये नहीं देखा, मैं उसका इलाज नहीं कर सकता। इब्राहिम को मालूम होने लगा कि यह कोई आम बीमारी नहीं है, ये तो अल्लाह की जानिब से है। और फिर क्या हुआ? उसके जिस्म पर बहुत बड़े बड़े फोड़े निकलने लगे, इतने बड़े कि आपको देखकर खुद से डर लगे। अगर उनको काटो तो खून बह निकले, अगर उन्हें हल्के से छुओ तो इतना दर्द है कि इब्राहिम चीख उठे। दोस्तों, ये अल्लाह का अजाब था, ये इब्राहिम की सजा थी। अल्लाह उसे अजाब दे रहा था इसलिए कि उसने अल्लाह की भी ना सुनी और गरीबों को भी सताया। इब्राहिम की बीवी उसके पास बैठकर रो रही थी। वो अपने शौहर को तलपते देख रही थी। वो जानती थी कि यह आम बीमारी नहीं है, वो जानती थी कि यह अल्लाह का अजाब है। इब्राहिम की बेटी अपने बापा के पास आकर रो रही थी। वो अपने बापा से कह रही थी कि अब्बा, बराए करम ठीक हो जाए, हम आपके बगैर नहीं रह सकते, मैं आपको बहुत प्यार करती हूं। लेकिन इब्राहिम के पास अपनी बेटी की बात सुनने की भी ताकत ना थी। वो सिर्फ अपने दर्द में था, सिर्फ अपनी तकलीफ में था। यहां सुनो दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया में अल्लाह के अजाब का एक नमूना है। अगर तुम आखिरत में अल्लाह के अजाब से बचना चाहो तो अभी तौबा कर लो, अभी अपना रास्ता बदल लो, देर ना करो, क्योंकि मौत जब आए तो फिर कोई चीज नहीं बचा सकती। इब्राहिम को कहीं से यह बात सुनाई दी। उसने सोचा, उसने अपने आप को देखा। अब उसे समझ आ गया, अब उसे मालूम हो गया कि यही अल्लाह का अजाब है। इब्राहिम ने अल्लाह से सजदा कर कर कहा, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, मैंने तेरे हुक्मों को नहीं माना, मैंने गरीबों को सताया, मैंने हराम का माल खाया, बराहे करम मुझे माफ कर दे। लेकिन दोस्तों, तौबा करें तो भी बहुत देर हो चुकी थी। इब्राहिम का जिस्म बहुत कमजोर हो चुका था, अब वक्त न था बचने का। एक दिन इब्राहिम बहुत ही बीमार हो गया। डॉक्टरों ने उसकी अहलखाना को बताया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम उसे नहीं बचा सकते। इब्राहिम को मालूम हो गया कि अब मौत करीब है, अब अंजाम करीब है। इब्राहिम ने अपनी बीवी को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया, अपनी बेटी को बुलाया, उसने सबको अपने इर्द गिर्द बिठाया। इब्राहिम ने अपने खानदान से कहा, मैं एक बहुत ही बुरा आदमी हूं, मैंने गरीबों को सताया, मैंने अल्लाह के हुक्मों को नहीं माना, मैंने हराम का माल खाया, मैंने शराब पी, मैंने सूद का कारोबार किया, अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। और फिर इब्राहिम की मौत आ गई। जनाजे को तैयार किया जाने लगा, लेकिन उसके जिस्म से एक बोय आने लगी, ऐसी बोय जो इंसान को नफरेज करती थी। यह भी अल्लाह की अलामत थी, यह भी अल्लाह का पैगाम था कि यह आदमी अल्लाह से बहुत दूर था। फिर इब्राहिम को कब्र में रखा गया और यहां शुरू हुआ सबसे बड़ा अजाब। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जब कोई इंसान कब्र में दाखिल होता है तो अल्लाह के फरिश्ते उससे सवाल करते हैं। उन फरिश्तों का नाम है मुनकिर और नकीर। ये दोनों फरिश्ते इब्राहिम की कब्र में आए। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारा रब कौन है? इब्राहिम के पास कोई जवाब नहीं था, वो खामोश रहा। फरिश्तों ने फिर से पूछा, तुम्हारी दीन क्या है? फिर से इब्राहिम के पास कोई जवाब नहीं था। फरिश्तों ने तीसरी बार पूछा, तुम्हारे नबी कौन है? इब्राहिम इस बार भी कोई जवाब नहीं दे सका और फरिश्तों ने इब्राहिम को बहुत सख्त सजा दी। कुरान में लिखा है कि जो लोग अल्लाह के सवालों का जवाब नहीं दे सकते उनके लिए कब्र में बहुत सख्त अजाब है। यही है दोस्तों अल्लाह का अजाब, पहले दुनिया में, फिर कब्र में और फिर जहन्नुम में। इब्राहिम का खानदान अब सन्नाटे में था। उसकी बीवी अब अकेली रह गई, उसके बेटे अब बगैर बाप के रह गए, उसकी बेटी अब बगैर बाप के रह गई। सब कुछ चला गया। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। इब्राहिम का बेटा था, उसका नाम था महमूद। महमूद बहुत ज़हीन लड़का था।
उसने अपने बापा को अजाब में देखा। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है, महमूद ने अपने बापा से कोई सबक नहीं लिया। महमूद ने भी उसी रास्ते पर चल दिया। वो भी शराब पीने लगा, वो भी सूद का कारोबार करने लगा, वो भी गरीबों को सताने लगा, बिल्कुल अपने बापा की तरह। इब्राहीम की बीवी ने महमूद से समझाया, बेटा, तुम्हारे बापा को अल्लाह ने अजाब दिया, उसकी वजह यह थी कि वो अल्लाह से दूर हो गया था। बराह करम उसी रास्ते पर न चलो, अपने आप को बचाओ। लेकिन महमूद ने अपनी मां की बात नहीं सुनी, वो अपने रास्ते पर ही चल गया। कुरान में लिखा है कि जो लोग अपने वालिदैन की बात नहीं सुनते, उनके लिए दुनिया और आखिरत में अजाब है। और महमूद को भी वही बीमारी आई जो उसके बापा को आई थी, बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि अल्लाह का कानून तब्दील नहीं होता। महमूद अपने डॉक्टरों से कहने लगा, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों से इलाज करूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन यह कोई आम बीमारी नहीं थी, यह अल्लाह का अजाब था। और अल्लाह के अजाब से कोई भी दुनिया का पैसा, दुनिया का डॉक्टर, दुनिया की कोई भी चीज आपको नहीं बचा सकती, हरगिज नहीं। महमूद भी मर गया, उसी तरह, उसी बीमारी से, उसी अजाब से। उसकी बीवी अब अकेली रह गई, उसके बेटे अब बगैर बाप के रह गए, उसकी बेटी अब बगैर बाप के रह गई। सब कुछ दोबारा दोहराया गया। यह अल्लाह का अजाब है, यह अल्लाह की सजा है। जब तुम अल्लाह से दूर हो जाते हो तो अल्लाह तुम्हें सजा देता है, और यह सजा नस्ल दर नस्ल चलती है। यह अल्लाह का कानून है। लेकिन इब्राहीम की बीवी का नाम था फातिमा। फातिमा बहुत बुरी हो गई थी, उसके पास कोई नहीं रहा। उसके बेटे अपने अपने कामों में मशगूल थे, उसकी बेटी शादीशुदा थी, वो अपने ससुराल में थी। फातिमा अब अकेली अपने बड़े घर में रहती थी। एक दिन फातिमा को सोच आया, उसने सोचा, अब उसे समझ आ गया, ये सब कुछ अल्लाह का अजाब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का पैगाम है। फातिमा ने अल्लाह के सामने सजदा किया। उसने कहा, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने अपने शौहर को अल्लाह से दूर होते देखा और कोई कोशिश नहीं की। मैंने अपने बेटे को गलत रास्ते पर देखा और कोई कोशिश नहीं की। मैंने उन्हें समझाया नहीं, मैंने उन्हें अच्छी तालीम नहीं दी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जो लोग सच्चे दिल से तौबा करते हैं, अल्लाह उन्हें माफ कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौबा के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अल्लाह ने फातिमा की तौबा को कबूल कर लिया। फातिमा के बाद के सालों में कोई बीमारी नहीं आई, कोई तकलीफ नहीं आई। वो बहुत पुरसकून थी, उसके चेहरे पर नूर था, उसके दिल में सुकून था। एक दिन फातिमा ने अपने बेटे को बुलाया, अपनी बेटी को बुलाया, उन्हें अपने पास बिठाया। वो कह रही थी, बेटा, बेटी, तुम्हारे बापा और तुम्हारे भाई को अल्लाह का अजाब आया क्योंकि वो अल्लाह से दूर थे। तुम उसी रास्ते पर ना चलो, तुम अल्लाह के करीब रहो, अल्लाह की बात सुनो बराह करम। इब्राहीम के बेटे ने अपनी मां की बात सुनी, उसने अपना रास्ता बदल दिया, उसने अपनी शराब की बोतलें फेंक दी, उसने अपना सूद का कारोबार बंद कर दिया, उसने गरीबों को मदद देना शुरू किया। वो अब एक नेक इंसान बन गया। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और अच्छे काम करते हैं, उनके लिए जन्नत है। और इब्राहीम के बेटे को अल्लाह ने जन्नत में जगह दी, और यही है सबसे बड़ा फर्क। इब्राहीम और महमूद ने अल्लाह के अजाब से सबक नहीं लिया, लेकिन इब्राहीम का दूसरा बेटा और फातिमा ने अल्लाह के अजाब को देखा और तौबा किया, और उन्हें अल्लाह ने माफ कर दिया। दोस्तों, ये कहानी खत्म होती है यहां, लेकिन इसका सबक हमेशा रहता है, हमेशा याद रहता है। अल्लाह ताला का अजाब बहुत सख्त है, बहुत ही सख्त है, लेकिन अल्लाह बहुत रहीम भी है। अगर तुम अपनी गलती से सीखो, अगर तुम तौबा करो, अगर तुम अल्लाह से सच्चे दिल से इल्तिजा करो, तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन यह माफ़ी दुनिया में आसानी से नहीं मिलती। अल्लाह पहले तुम्हें अजाब देता है, फिर तुम्हें सजा देता है, ताकि तुम सीखो, ताकि तुम समझो, और फिर तुम्हें माफ करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब अल्लाह किसी को ख़त्म करना चाहता है तो उसको दुनिया में अजाब देता है, और जब अल्लाह किसी को बचाना चाहता है तो उसको तौबा की तौफीक देता है।
اللہ ताला के अजाब की मिसालें कुरान शरीफ में बहुत सी हैं। कौम नूह को अल्लाह ने सैलाब से अजाब दिया, वो सब डूब गए। कौम आद को तूफान से अजाब दिया गया, वो सब बह गए। कौम समूद को आवाज से अजाब दिया गया। कौम लूत को पत्थर की बारिश से अजाब दिया गया। ये सब कहानियां कुरान में क्यों है? अल्लाह ने ये कहानियां इसलिए बताई हैं ताकि हम सीखें, ताकि हम समझें, ताकि हम अपनी गलतियों से बचें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि इनमें तुम्हारे लिए सबक है बड़ा सबक, अजीम सबक। दोस्तों, अल्लाह का अजाब सिर्फ आखिरत में नहीं है, दुनिया में भी है। जब कोई इंसान अल्लाह से दूर चला जाता है तो अल्लाह उसको अजाब देता है। ये अजाब क्या हो सकता है? बीमारी, गुर्बत, बदनामी, तन्हाई, मौत और भी बहुत कुछ। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम्हारा भाई बीमार हो तो समझो कि अल्लाह उसको साफ कर रहा है। अल्लाह बीमारी से इंसान के गुनाहों को धो देता है, तो बीमारी भी अल्लाह की रहमत है अगर हम समझें तो। कब्र में भी अल्लाह का अजाब है। जब इंसान मर जाता है तो उसका सफ़र कब्र से शुरू होता है। कब्र में मुनकर और नकीर नाम के 2 फरिश्ते आते हैं। वो 3 सवाल करते हैं। पहला, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा, तुम्हारी दीन क्या है? तीसरा, तुम्हारे नबी कौन है? जो लोग इन सवालों का जवाब दे सकते हैं उनके लिए कब्र बहुत पुरसकून है, बहुत खुशगवार है। लेकिन जो लोग जवाब नहीं दे सकते उनके लिए कब्र अजाब का जगह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कब्र में अजाब बहुत ही ड्रामनाक है, बहुत सख्त है। और आखिरत में जहन्नम में अल्लाह का अजाब सबसे बड़ा है, सबसे सख्त है। जहन्नम में आग है। ये आग दुनिया की आग से 700 गुना गर्म है। कुरान शरीफ में लिखा है कि जहन्नम में जो लोग होंगे उन्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं, हमेशा के लिए वहां रहेंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि जहन्नम में लोग चीखते हैं, उनकी चीखें समा तक जाती हैं, क्योंकि वहां का अजाब बयान से बाहर है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बचने का रास्ता बताया है, बहुत सादा रास्ता। पहला, अल्लाह को मानो, अल्लाह को सच्चे दिल से मानो, अल्लाह से डरो। दूसरा, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो। तीसरा, गरीबों की मदद करो, मिस्कीनों को खैरात दो, उनको खाना खिलाओ, उनको कपड़े दो। चौथा, अपने वालिदैन का ख्याल रखो, उनकी इज्जत करो, उनकी बात सुनो। पांचवा, अपने हमसाइयों से अच्छा सलूक करो, उनसे मोहब्बत रखो, उनकी मदद करो। छठा, गलत काम से बाज रहो, शराब न पियो, हराम न खाओ, बदकारी न करो, सूद न खाओ। सातवां, अगर गलती हो जाए तो तौबा करो, अल्लाह से सजदा कर कर माफ़ी मांगो और अल्लाह माफ़ कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बेहतर अमल ये है कि तुम अल्लाह से डरो। यही अहम है, यही सब कुछ है। दोस्तों, अल्लाह ताला का अजाब सख्त है, लेकिन अल्लाह की रहमत भी बहुत बड़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह की रहमत 1000 सनों की भी बड़ी है। तो अगर तुम सच्चे दिन से तौबा करो, अगर तुम अल्लाह से दुआ करो, तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन ये माफ़ी सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं, जो अल्लाह से सजदा करके माफ़ी मांगते हैं, जो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तौबा करे अल्लाह की तरफ, तुम्हारी सब के लिए, ताकि तुम कामयाब हो। ये कहानी खत्म होती है यहां, लेकिन दोस्तों, ये अब तुम्हारी कहानी है। तुम्हें फैसला करना है, तुम क्या बनोगे? तुम इब्राहीम की तरह होगे या फातिमा की तरह? तुम अल्लाह से दूर होगे या करीब? तुम अजाब पाओगे या रहमत? ये तुम्हारी पसंद है, ये तुम्हारी इख्तियार है, ये तुम्हारा फैसला है। अल्लाह ताला से दुआ, या अल्लाह हमें हिदायत दे, हमें अल्लाह से डरने की तौफीक दे, हमें गरीबों की मदद करने की अक्ल दे, हमें अपनी वालिदैन का ख्याल रखने की ताकत दे, हमें तौबा की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब से बचा। ऐ अल्लाह, हमें जन्नत में जगह दे। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन। ये कहानी ख़त्म है, लेकिन सबक हमेशा रहेगा, हमेशा। अल्लाह हमें अपने अजाब से बचाए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन।
दोस्तों, इब्राहिम और महमूद का अंजाम हमें बताता है कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है, लेकिन मौत का वक्त मालूम नहीं। इससे पहले कि देर हो जाए, अपने राब की तरफ पलट आएं। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो रिलीजियस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूरी करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं।